Honorable members, today we pay our humble tributes to the security personnel who made supreme sacrifice to defend the temple of democracy 22 years ago. On this day, in 2001, the atrocious plan of terrorists to shake the foundation of our democracy by launching an armed attack on Indian Parliament was foiled by our brave security personnel. 9 of them laid down their life defending our Parliament. By their selfless act, these heroic martyrs set an example of unwavering devotion to duty and indomitable courage. Their sacrifice will be remembered as we reiterate our commitment to wipe out terrorism, a threat to humanity in all its forms and manifestations. I speak in no uncertain terms that Bharat, the mother of democracy, will emerge mightier and stronger whenever such nefarious efforts are made to shake us. Honorable members, I request you to rise in your place and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in the terror attack. Papers to be laid on the table. General Retired V.K. Singh. So with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 1 of revised list of business. साध्वी निरंजन ज्योति. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ. श्री नित्यानंद राय. अन्य सभापति महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यावली में क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी. आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यावली सूची की क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ. श्री बी.एल. वर्मा. सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की राज्यसभा की संशोधित कार्यवली में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमांक हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ. श्री अजय कुमार. की पुनरीक्षित कार्यवली में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ. सुश्री प्रतिमा भौमिक. माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सदन कर पटल पर रखती हूँ. डॉक्टर सुभाष सरकार. सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यवली सूची की क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूँ. मैसेजेस फ्रॉम लोक सभा सेक्रेटरी जनरल. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 12th December 2023 passed 1.
the Jammu and Kashmir Reorganization Second Amendment Bill 2023, and 2, the Government of Union Territories Amendment Bill 2023. I lay a copy each of the said bills on the table. Reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports, Shri Vivek Thakur. सर, आदरणीय सभापति महोदय, मैं विभाग संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्तुत करता हूं। युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में 351वां प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों व समयुक्तों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 357वां प्रतिवेदन, विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान आधारित शिक्षा और अनुसंधान परिदृश्य संबंधी 358वां प्रतिवेदन और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में 350वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों व समयुक्तों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 359वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। Report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Dr. Ashok Vajpayee. Shri Rajmani Patel. Passed over. Statement by Minister Srimati Smriti Zubin Irani. Sir, with your kind permission, in pursuance of the provisions of Rule 35 of Procedure and Conduct of Business, I wish to inform the House status of implementation of recommendations, observations contained in the 350th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on demands for grants 2023-24 pertaining to the Ministry of Women and Child Development. Matters raised with permission of the Chair, 0 hour, Shri Rajiv Shukla. धन्यवाद सभापति। Need to curb digital frauds in the country. You धन्यवाद must सभापति also जी। talk of engineering, social engineering by tackling these problems. धन्यवाद सभापति जी, मैं आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठा रहा हूं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही डिजिटल लेन देन के साथ, और जैसे जैसे हम नकदी अर्थव्यवस्था से कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, डिजिटल धोखाधड़ी की संख्या भी बढ़ रही है। यहाँ वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं। हर किसी ने अनुभव किया होगा कि कैसे धोखेबाज लोगों को मैसेज भेजकर उन्हें पैन नंबर अपडेट करने, खातों को अनब्लॉक करने, क्रेडिट कार्ड पर गिफ्ट आज देने के बहाने कॉल कर रहे हैं। हमें इस खतरे को रोकने के लिए कड़े उपायों की जरूरत है। आज यह सच है कि कार्ड से भुगतान और यूपीआई के माध्यम से भुगतान बढ़ गया है, लेकिन साथ ही लोग डिजिटल धोखाधड़ी में लाखों रुपए खो रहे हैं। इनका जाल इतना सटीक होता है कि आईटी इंजीनियर, सरकारी अधिकारी, वकील और अकाउंटेंट भी इनके जाल में फंस जाते हैं। और गरीब लोग तो बहुत ज्यादा, वो तो उनको धमकाते हैं कि मैं साहब बिहार से हूँ, जो पकड़वाना है पकड़वा लो, हम आपको पकड़वा नहीं, आप हमें पकड़ा नहीं सकते। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 276 करोड़ रुपए की 6,659 डिजिटल धोखाधड़ी का हवाला दिया है। यह पिछले वर्ष रिपोर्ट किए गए 155 करोड़ रुपए के 3,596 धोखाधड़ी वाले लेन देन मामलों से अधिक है। हमें यह सोचने की जरूरत है भुगतान प्रणालियों के भीतर खुफिया जानकारी कैसी बनाई जाए, जिसका उपयोग ऐसे लेन देन को फिल्टर करने या ब्लॉक करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही हमारे लोगों की डिजिटल जागरूकता में सुधार के लिए व्यापक कार्य योजना की जरूरत है। सभी के हाथों में मोबाइल फोन है, लेकिन उनमें से अधिकांश को उन सुरक्षा उपायों की जानकारी नहीं है जो उन्हें अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए अपनाने चाहिए। भारतीय बैंकों ने महत्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं, जिनमें नए खातों में लेन देन के लिए एक सीमा, ज्ञात धोखेबाजों के लिए एक सेंट्रल नेगेटिव एजेंसी और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग पर कैश फ्लो को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शामिल है। 15 नवंबर तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग प्रणाली की शुरुआत के बाद से
1.3 मिलियन से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई है। सवाल यह है कि हम कितने मामलों को ट्रैक करने, मामलों को सुलझाने में सफल हुए हैं। पुलिस भी इनमें उस तरह से प्रशिक्षित नहीं जैसे उनको प्रशिक्षित होना चाहिए। वित्त मंत्री जी यहाँ बैठी हैं, जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बना बना के उनको धोखे से उनके पैसे लूट जाते हैं, गरीब लोगों के, किसी के 30,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख, लोग परेशान हैं। इस पे कुछ ना कुछ आप करिए, बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये विषय यहाँ पे उठा रहा हूँ। सभापति जी ने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग के बाद, सोशल इंजीनियरिंग के इनसे बड़ा उदाहरण कौन हो सकता है? प्रतीक राजस्थान के जाट होने के बाद उपराष्ट्रपति हो गए। सारी मलाई तो आप ही खा रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग की दूसरी कौन खा रहा? उपराष्ट्रपति पे कोई पहुंचा वहां से? हमारे मृदा जी जो डिप्टी चेयरमैन तक पहुंचे, तो आप यहाँ से वहां पहुंच गए, तो सोशल इंजीनियरिंग के आपसे ज्यादा उदाहरण कौन हो सकता है? ये तो हम सोशल मीडिया और डिजिटल उस पर बोल रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग कहाँ से? पहली बार आकर यहाँ तक पहुंच गया। ये हीरे की पार की तो नरेंद्र मोदी थी जो आपको बैठा दिया यहाँ पर, और इससे बड़ा सोशल श्री आप सबसे मिलते हैं और आपको यहाँ मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आप एक शेखावाटी के हैं और फिर यहाँ तक पहुंच गए। ये प्रमोद तिवारी जी, हम आपको राजस्थान का ही मानते हैं जी। आप राजस्थान से सांसद हैं, कुछ कह सकते हैं? ये मक्खन का आरोप लगा रहे हैं। सर मैं तिवारी हूँ, ये तिवारी है, ये फर्क है सर। मतलब फर्क क्या है? सर चूंकि राजस्थान में तिवारी लिखा जाता है, यहाँ तिवारी लिखा जाता है उत्तर प्रदेश में, ये फर्क है सर। हम भी हैं साहब, ये भी जो बोल रहे हैं ये भी राजस्थान से। आप भी राजस्थान से हैं? जी सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। और नीरज डांगी ऑथेंटिक है? यस सर, हम लोग सर्टिफाइड। आई नो, ये भी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हैं, वेणुगोपाल जी भी हैं। ऑथेंटिक है, हम ऑफिशियल है। मैं सोच रहा था कि प्रमोद तिवारी जी मुझे प्रोटेक्शन देंगे, मेरे पर आरोप लगा है मक्खन खाने का, और उसको अगर आप अदरवाइज लें तो सब। श्री अजय प्रताप सिंह कि आप यहाँ तक पहुंचे, ये राजस्थान का सौभाग्य तो है ही। ठिठाना गांव से आप यहाँ तक पहुंचे, पूरी यात्रा का पता है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग नहीं है? सोशल इंजीनियरिंग तो कहा कि ये जेली गाड़ दी तो जाट जेली गाड़ देता है, आपने यहाँ भारत के संविधान में अगर जेली गाड़ दी है। श्री अजय प्रताप सिंह रिक्वेस्ट टू चेंज द नेम ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन सिद्धि मध्य प्रदेश। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, परसों आपने आसंदी से कहा था कि नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर को उद्धृत करते हुए। फिर आपने ही समाधान दिया कि आज के दौर में नाम का बड़ा महत्व है। सभापति महोदय, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है और मध्य प्रदेश में स्थित मेरा गृह जिला सीधी प्राकृतिक संपदा और प्राकृतिक विशेषताओं से भरपूर है। सीधी जिले के बरगड़ी जंगल में पनघोरा ग्राम के पास 27 मई सन 1951 में विश्व का पहला सफेद बाघ तत्कालीन रीवा महाराज मार्तन सिंह जी ने पकड़ा था। फिर उसका उन्होंने पालन पोषण किया, उसका नामकरण उन्होंने मोहन किया। उनके कर्मचारी उनको आदर से बाघ को मोहन सिंह कहते थे। मोहन सिंह ने राधा नामक बाघिन के संसर्ग से 34 बाघ शावक उत्पन्न किए। उन 34 बाघ शावकों में 21 बाघ शावक सफेद रंग के थे। उन्हीं की संतति अमेरिका गई, उन्हीं की संतति इंग्लैंड में ब्रिस्टल जू गई, और आज दुनिया में जितने भी सफेद बाघ हैं
सब मोहन सिंह के वंशज हैं। मोहन सिंह की मृत्यु 1969 में हुई और विंध्य की धरती में विराट नामक बाघ, सफेद बाघ अंतिम बाघ था। उसके बाद कोई सफेद बाघ वहां पर रह नहीं गया। इसी मोहन के ऊपर वर्ष 1987 में डाक टिकट भी जारी किया गया था। वर्ष 2015 में रीवा में मुकुंदपुर सफारी में दोबारा से सफेद बाघ को एक कैप्टिव जू में रखा गया है। आज उस जू में 3 सफेद बाघ हैं और 4 सामान्य बाघ हैं। 2016 में जो यहाँ पर 26 जनवरी की परेड हुई थी, उस परेड में भी मोहन बाघ की झांकी प्रस्तुत की गई थी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जो मोहन की जन्मभूमि थी, मातृभूमि थी, उस टाइगर रिजर्व का नाम वर्तमान में स्वर्गीय संजय गांधी जी के ऊपर है। मैं स्वर्गीय संजय गांधी जी के प्रति बड़ा आदर भाव व्यक्त करते हुए इस सदन में कहना चाहता हूं कि उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आज इस भारत में अनेक संस्थाएं हैं। इसलिए मोहन की स्मृति को बनाए रखने के लिए संजय धन्यवाद 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 अजय जी, आपका समय खत्म हुआ। माननीय अजय जी, माननीय श्री जगेश जी, डिमांड टू इंक्लूड इम्प्लीमेंटेबल कॉरिडोर वेक्टर डिफ्लेटर ICD इन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। Thank you, sir. Sir, in all rhythm is a disorder of human heart rate or rhythm. It means that the heart beats too quickly, too slowly, or with an irregular pattern. The disorder results from problems in the electrical system of the heart. If the disorder is serious, a patient may need a cardiac pacemaker or an implantable cardioverter defibrillator, that is ICD. They are the device that are implanted in the chest or the abdomen, which controls the abnormal heart rhythms. It uses electrical pulses to make the heart to beat at normal rate. If it senses danger rhythms, it delivers shock. This treatment is called defibrillation. An ICD can help control life-threatening heart rate disorder, especially those that can cause sudden cardiac arrest. Most new ICDs can act as both a pacemaker and a defibrillator. Many ICDs also record the heart electrical pattern. When there is an abnormal heartbeat, this can help the doctor to plan future. Sir, my concern is in all heart-related central as well as state government schemes, claim is extended only for single or double chamber pacemaker, but the cost of the ICD and procedure for cardiac condition is not covered by any health schemes. As many patients is ICD, especially rural or poor patients, patient has to bear the full amount for which the cost is very high, and the patient left with no option other than to live with the disease or to die. If high cost treatment like this are not included in the scheme, the rural and poor patients will suffer. Therefore, sir, I urge the government to include ICD in health protection schemes like Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, that is Ayushman Bharat, so that lakhs and lakhs of patients will be benefited with this and will be boon for patients suffering from this life-threatening disorder. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय श्री जगेश जी। माननीय श्री साकेत गोखले जी, डिमांड टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ lawyer for the welfare of under trial prisoners. Thank you, sir. So I stand today as an MP speaking for under trial prisoners in India in this August House, thanks to my leaders Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee, and my party Trinamool Congress. So I spent half of this year, 2023, in the Sabarmati Central Jail in Gujarat as an under trial prisoner. So today I want to speak about something which is the dark underbelly of our democracy. I'm going to start with a very small fact, sir. So what percentage of the prison population in India under trials? 10%, 20%? No, sir. 77% of our prisoners are under trials, which means 3 out of 4 people in our jails are technically innocent until proven guilty. Now, let me inform this August House about what the day of an under trial prisoner in India looks like.
They are woken up at 6 o'clock in the morning with guards coming in and kicking them with their boots. After that, lunch is served at 9 o'clock in the morning. That's lunchtime, 9 o'clock. Dinner, sir, dinner. Dinner is served at 3 o'clock in the afternoon. And what is dinner? It is 2 rotis. The rotis are like cement. You have to soak them in water for 30 minutes to make them edible, and a bowl of boiled potatoes with mirchi powder on it. This food is unfit for human consumption, but that is what they're given. And after giving dinner at 3 p.m., sir, they don't get any food till 9 o'clock the next morning. Sad. In a barrack meant for 40 people, 80 to 85 people are stuffed together. So the standard solution for any prison guards is very simple. A prisoner comes with a concern, they tie him to a pole and beat him for 15 minutes so that he never opens his mouth again. Most deplorable. So majority of under trials in jail are there for petty offenses. There was a guy in my barrack, he was in jail for 2 years because he stole a 30 rupee pouch of milk. But he doesn't have 500 rupees for bail, so he's languishing in prison since the last 2 years. Unfortunate. Sir, sexual assault is rampant. Patients with mental health are kept with the other prisoners. They get bullied and they also get sexually abused. Prison guards turn a blind eye to it. So legal aid is non-existent because 10 legal aid lawyers in one prison. Please. 10 legal aid lawyers Please, in one prison. Honorable Minister, let him speak. Sir, I seek your protection, Please, sir. no. Close. I Please. seek your protection, sir. Honorable Minister, let him speak, please. Please. I seek No, your please. protection and some time. Please. Sir, you've not been to jail. I've been to jail. Please let him speak. So please stop the clock. He's taking my time. Please. So legal aid is non-existent. 10 legal aid lawyers in a jail, 3,000 under trial prisoners. कहाँ से काम करेंगे वो? Sir, to get to a lawyer, it takes 6 months. 6 months to get to a lawyer. So all branches, Please, nothing is going on in court. Please. sir. All Honorable Minister, branches. please take yours. हमें नहीं मिला सर 6 महीने दाल चावल. Mr. Gokhale, please address. Sir, all branches of our system, the executive locks prisoners. Majority of them are Muslims, SCs, STs, and OBCs. The judiciary. Thank you. No, you're please. Thank you. No, I cannot give time. No, please. Thank you. माननीय श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, concern regarding cancellation of waiting ticket purchased from window counter at railway station. Please. राजीव जी, take your seat. रेलवे भारतीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है देश में। देश भर में प्रतिदिन Yes, Mike is on. देश भर में प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ 40 लाख Please. आप बोले। 2 करोड़ 40 लाख नागरिक रेलवे की सेवाओं का उपयोग करते हैं। लेकिन मैं आज सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान रेल यात्रियों की एक बहुत ही व्यापक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, ऑनलाइन आरक्षण की सुविधा होने के बावजूद आज भी देश में बड़े पैमाने पर और खास करके दूर दराज के इलाकों में अधिकतर यात्री रेलवे का विंडो टिकट लेते हैं। अभी भी जो मौजूदा नियम है उसके अनुसार वेटिंग टिकट अगर कंफर्म नहीं हुआ तो ट्रेन के रवाना होने के आधे घंटे बाद तक विंडो से लिए गए वेटिंग टिकट को कैंसिल कराया जा सकता है। लेकिन इसमें यात्रियों को बहुत ही ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वैसी जो ट्रेन सुबह में या देर रात खुलती है उनका चार्ट सामान्यतः देर रात तक ही प्रिपेयर होता है और उस समय तक टिकट काउंटर प्रायः बंद हो चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में जिस यात्री का टिकट कंफर्म नहीं हुआ उनके पास टिकट कैंसिल करने का कोई दूसरा उपाय बचता नहीं। इसलिए मजबूरन उन्हें या तो वेटिंग टिकट में ही यात्रा करनी पड़ती है अथवा उनका पैसा डूब जाता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव है कि विंडो से लिए गए जो भी टिकट हैं उनके कैंसिलेशन के लिए जरूर एक वैकल्पिक व्यवस्था भी शुरू की जानी चाहिए। ऐसे सरकार में अब सभी ऑनलाइन और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बहुत हो रही है। जैसे अगर
एक हेल्पलाइन भी जारी कर दिया जाए तो ऐसे यात्रियों को यात्री कॉल करके चाहे तो अपना टिकट कैंसिल करा सकते हैं। रेलवे की जो आरक्षित टिकट है उनका कैंसिलेशन फीस भी इधर काफ़ी बढ़ाया जा चुका है। इससे जो गरीब यात्री हैं उसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि कम से कम स्लीपर और थर्ड एसी के टिकट के कैंसिलेशन चार्ज को भी कम किया जाना चाहिए। इसमें मेरा यह भी सुझाव है कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर टिकट रिजर्वेशन काउंटर की भी काफ़ी कमी है। अब जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं कि रेलवे में स्टाफ की भी कमी है और बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं। तो एक तो खाली पड़े पदों पर भर्ती की जानी चाहिए, दूसरा अगर संभव हो। धन्यवाद माननीय अखिलेश जी, धन्यवाद। समय खत्म हुआ, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। माननीय अखिलेश जी, ये 3 मिनट का ही 0 आवर में समय होता है, आप लोग समय के तहत बोले, वो रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। माननीय श्री एस सेल्वागन वेथी डिमांड टू सेट अप नेशनल काउंसिल to improve the level of education in primary schools. Honorable Chairman, sir, at the outset, I would like to congratulate the Ministry of Education for improving the quality of higher education by setting up RUSA, National Higher Education Scheme. This has improved the infrastructure facilities of colleges and the polytechnics in the Union Territory of Puducherry beyond the efforts of the local government. I am really impressed by the success of the scheme in a very short time. The new education policy 2022 gives importance to primary education in the country because primary education is the instrument of improving the quality of life, especially in the rural sector. But I find most of the government schools lack basic infrastructural facilities like clean drinking water, toilet facilities, and teaching aids. Only if the infrastructure of the school and the quality of teaching is attractive, we can achieve 100% literacy at the primary level. I appreciate that the extension of midday meal scheme has increased the enrollment ratio. Now we are celebrating the International Year of Millets. At this juncture, I would like to highlight that the government of Puducherry is introducing millet breakfast for the school children. This is certainly nutritious. Honorable Chairman, sir, every day about 67,000 children are born in India, 1/6 of the world's total childbirth. There are as many as 12.22 lakh schools in India imparting elementary education, out of which about 80% are government and government-aided schools. The quality of education and access to basic amenities in these schools are far from satisfactory. Therefore, I request through you, sir, for setting up of National Council for Improvement of Primary Education at the earliest and to implement the following requirements in all primary schools in India: reducing the school dropouts, providing basic infrastructural facilities, yearly medical checkup for students, and maintaining health record till they complete 12th standard, conducting students, parents, counseling through teachers counselor. School curriculum should include moral science subject with a textbook. All schools should have craft teacher to impart skill training. Quality and innovation, learning enhancement program, holistic progress card, innovative pedagogies, ICT, smart classroom, and digital libraries. Thank you, Mr. Thank you. Manya Kavita Patidar ji demand to replace the existing practice of issuance of multiple certificates in the country by one certificate. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान देश के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक राशन योजना, एक क्रांतिकारी योजना शुरू की गई थी, जिसका परिणाम सबके सामने है। क्योंकि इस योजना का लाभ बहुत ही कम समय में 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 80 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत परिणाम देने वाली योजना में से एक है। इसी योजना के तर्ज पर मेरा सरकार एवं सदन से आग्रह है
कि एक राष्ट्र एक प्रमाण पत्र योजना भी शुरू की जानी चाहिए, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र को सम्मिलित किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, यदि किसी बच्चे का जन्म किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है तो उसके जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन फॉर्म में उसकी जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, स्थायी पता, नागरिकता और उसकी जाति अंकित की जाती है। इसी के समानांतर लगभग सभी जानकारी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र में भी अंकित की जाती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों प्रमाण पत्र अलग अलग विभागों द्वारा बनाए जाते हैं, जिससे इन प्रमाण पत्रों को बनवाने वाले भाई बहनों को अलग अलग विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उनका समय बर्बाद होता है, आर्थिक हानि होती है और कार्यालयों के चक्कर लगाने के साथ साथ अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन से यह बताना चाहती हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इनकी पंजीयन संख्या के अलावा लगभग सारी जानकारी एक सी होती है। इसलिए मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि जन्म प्रमाण पत्र को ही जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र के विकल्प के तौर पर वैध कर देना चाहिए, ताकि मेरे देश के भाई बहनों को विभिन्न विभागों और कार्यालयों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिल सके और एक ही प्रमाण पत्र में उनका कार्य सिद्ध हो सके और जो प्रमाण पत्र त्रुटिवश जारी हो जाते हैं उन पर भी रोक लगेगी। भविष्य में एक राष्ट्र एक प्रमाण पत्र को आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट और अन्य सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को भी एक दूसरे से इंटरलिंक किया जा सकता है। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा इसलिए सरकार से विनम्र आग्रह है कि मेरे इस सुझाव की ओर ध्यान दिया जाए ताकि देश के सभी भाई बहनों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कविता जी। माननीय श्री अजीत कुमार भुयान, कंसर्न ओवर वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन इन Assam. Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing me to raise an important issue for the country and particularly for Assam. It is a matter of pride to see the Prime Minister representing India in the Global Climate Summit, including the latest COP28 in Dubai. However, that feeling of pride wanes when we witness widespread deforestation undergoing unabated in our own country, more so when we see India's criticism at the international level, especially in scientific journals like the Science. Sir, let me take you to my state, where the state government continues to destroy forests at an unprecedented scale. We are seeing thousands of valuable sal trees cut down in the Kamrup and Gwalpara districts. Even after protests and concerns, this has not stopped. Not only in Gwalpara, Karbi Anglong, Dihing Patkai Hills, the capital city of Guwahati, sir, and Nagaon in the entire state, the destruction of forests is unprecedented. Sir, the Dihing Patkai region also sees illegal coal mining alongside the forest destruction. The state government, under the scheme of Amrit Brikho, boasts about the plantation of 1 crore saplings, but the reality has been unveiled now. Around 90% of the saplings have died. Sir, these schemes have many crores of investment but are unfruitful. Who will answer the huge loss of money invested in such unfruitful works? Sir, cannot Modi ji cannot hold the Himanta Biswa Sarma government accountable. Let me remind you that Assam has lost 18.2 thousand hectares of forest in 2022, according to Global Forest Watch. Moreover, Assam has 15 of the first 25 districts in India vulnerable to climate change. So I urge the central government, through you, sir, to take immediate action against widespread deforestation in Assam. Thank you. थैंक यू माननीय अजीत कुमार भुयान जी। माननीय श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल, कंसर्न ओवर अनरीजनेबल रेन इन द कंट्री। धन्यवाद सर। सर, पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बदलाव आ रहा है पूरे विश्व में, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। हमारे देश में
हाल ही में हिमाचल में बहुत बारिश हुई, सब कुछ बह गया, लोग हाहाकार बच गया। उसके बाद में चेन्नई में हुआ और महाराष्ट्र में हाल ही में हमारे बहुत बारिश हो गई। पहले तो बारिश नहीं थी इसलिए हम परेशान थे कि बारिश नहीं है, हम कैसे करेंगे, किसानों का खास तौर पे। और अभी इतनी बारिश हो गई कि हमारी सब फसल बह गई है। तो इसके लिए सरकार की एक परमानेंट स्वरूप की उनकी योजना, क्योंकि हमेशा ये हर साल हम देखते हैं कि ये क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ये सब परेशानियां होती है। सर, निसर्ग का असमतोल और ये जो हाहाकार हो रहा है उसमें हमें मदद करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल योजना लाई, बीमा योजना, लेकिन वो पूरी तरह फंसी हुई बीमा योजना है। परसों ही मेरे खुद के क्षेत्र में बीड़ में 54 रुपए आए बीमा के, और उसके फिर लोगों ने जुलूस निकाला उनका कि देखो सरकार ने 54 रुपए हमें दिए हैं। तो इस तरह से किसान सब तरह से मारा जा रहा है। पानी से कभी कभी पानी नहीं है इसलिए, कभी उनको परेशानी होती है कि सरकार उनको एमएसपी बार बार बोल के भी एमएसपी लीगलाइज नहीं हुई है। एमएसपी लीगलाइज करना आवश्यक है। अभी 2 डिसीजन ले लिए हैं सरकार ने जिसका सीधा संबंध मेरे स्टेट के ऊपर पड़ता है। एक तो उन्होंने ऑनियन, प्याज जो होता है उसको निर्यात बंदी कर दी है, उसका भी परिणाम हमारे किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और दूसरा, इथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। इथेनॉल प्रोडक्शन से हमारे जो बहुत सारे 1000, 150, 100-150 जो फैक्ट्रीज लगी थी जिसमें इथेनॉल तैयार होता था, और इथेनॉल पेट्रोल और डीजल में मिक्स होता था, पेट्रोल में, और उसकी वजह से हमारा पेट्रोल का कीमत कम रखने में मदद होती थी और हमारे किसानों को गन्ने का भाव अच्छा मिलता था। ये सब चीजों को ध्यान दे के पॉलिसी करना जरूरी है और वो सरकार करे। मुझे यहाँ आपको रिक्वेस्ट करना है, अनुमोदन करना है मुझे कि आज हिंदुस्तान में किसान सब तरह से शहीद अगर किसानों के पीछे लग जाए तो ये कौन से देश को शोभा लग देता है। अगर मेरे पिताजी शहीद हुए थे स्वातंत्र संग्राम के लिए तो मुझे अभिमान लगता है, लेकिन मेरे पिताजी शहीद हुए किसानों की लड़ाई लड़ते हुए, वो भी आजाद हिंदुस्तान में। ये इस देश में हो रहा है, उसके लिए ध्यान देना जरूरी है। और मुझे लगता है कि आजकल के जो वातावरण है, जो लोगों को गुस्सा आ रहा है, जो यूथ जनरेशन हमारी फ्रस्ट्रेटेड है, इसका कारण ही यही है कि इकोनॉमिकली उनके हाथ में कुछ नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है। एजुकेशन की कीमतें बढ़ गई है, प्राइवेट एजुकेशन हो गया है, और सबसे बड़ी बात है कि किसानों को जब तक इन्होंने वायदा किया था 2022 में हम दुगनी उत्पन्न करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने किया था जब 14 में चुन के आए, तो 2022 से दुगनी, कहाँ हुई दुगनी उत्पन्न? नहीं हुआ हमारा दुगना प्राइस। तो ये कहाँ हो गया? सबके नीचे आ रहे प्राइस, आप क्या बोल रहे हैं? तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इसको हमने। थैंक यू। जो माननीय सदस्य संबद्ध करना चाहते हैं किसी इशू से, अपना नाम सीधे डेस्क पे यहाँ भेज दें। माननीय श्री राकेश सिन्हा जी, डिमांड टू establish a museum in the memory of foreign nationals for their contribution in the struggle of Indian independence। सभापति महोदय, अभी हमने अमृत महोत्सव मनाया। उस अमृत महोत्सव का कितना प्रभाव पड़ा, हमारी इतिहास की समझ, इतिहास की जानकारी और इतिहास का फलक, तीनों का विस्तार हुआ। जो इतिहास सीमित दायरे में लिखा गया था, सीमित घटनाओं और सीमित नायकों के द्वारा बताया जाता था, उसका फलक बढ़ा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक कदम के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। एक उदाहरण मैं देता हूं। मैं एक सांसद के नाते ही इस अमृत महोत्सव में 2 ऐसे लोगों को ढूंढ पाया जिनका जन्म अपने पिता के शहादत के बाद हुई। एक वर्धा के अरविंद मालपे, जिनके पिता गोविंद मालपे आष्टी में शहीद हुए थे 1942 में। दूसरा बेगूसराय के मेघौल के राधा प्रसाद सिंह, जिनके पिता शहीद हुए थे 1942 में। और शहीद कुमार, जिनके पिता राधा प्रसाद सिंह शहीद हुए थे 1942 में। इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ राजनीतिक आर्थिक उद्देश्य से और राजनीतिक आर्थिक कारणों से और राजनीतिक आर्थिक कुलीनों के द्वारा नहीं था। इसमें एक सांस्कृतिक चेतना थी, जिस सांस्कृतिक चेतना ने दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया। उसके कुछ नाम हैं। कुछ विदेशी नागरिक, जैसे मैडेलिन सैलेट थी, जिनको महात्मा गांधी ने मीराबेन कहा और मीराबाई के नाम पर उनका एक आध्यात्मिक नाम दिया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई और उसके 1942 और 44 तक वे जेल में रहे। इसके अतिरिक्त कैथरीन हेलेन, इन्होंने एक लंबे समय तक स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान दिया है, जिनका नाम सरला देवी के नाम से हम जानते हैं। बीजे हॉर्मन, हम जानते हैं, एक बड़े पत्रकार थे।
उन्होंने जालियांवाला बाग कांड को उजागर किया था और 1913 में जो बम्बई क्रॉनिकल शुरू हुआ था उसके संपादक बने। 1911 में जब बंगाल का यूनिफिकेशन का आंदोलन चला था तो सड़कों पे वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े हुए। इसी तरह से CF एंड्रयूज, जिनको हम दीन बंधु के नाम से जानते थे, महात्मा गांधी जी ने उन्हें दीन बंधु कहा था। उन्होंने देश के शोषितों के लिए, गरीबों के लिए बड़ा काम किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक शोषण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त एक अमेरिकन नागरिक हमारे पास थे जो सैमुअल स्टोक्स, जिनको हम सत्यानंद जी के नाम से जानते हैं। भारत की सांस्कृतिक चेतना ने इन सबको सिर्फ राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा नहीं बनने दिया, बल्कि वे संस्कृति, विरासत और इतिहास से जुड़ गए। उन्होंने भारत माता को अपनी मां के रूप में स्वीकार किया। इसी में एक और नाम आता है कि मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, जिनको हम सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। उन्होंने भी भारत के आध्यात्मिक चेतना से अपने आप को जोड़ते हुए भारतीयों में एक आध्यात्मिक चेतना के सूचकांक को बढ़ाने का काम किया। वो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। इस प्रकार से एक और नाम है मीरा अल्फोंस, जिनको हम मदर के नाम से जानते हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे विदेशी धन्यवाद माननीय राकेश जी, योगदान। धन्यवाद। माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा जी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इकोसिस्टम फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट्स suffering from rare and genetic disorder. Thank you, Deputy Chairman. Please. Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing me to raise this very important issue of public importance. Sir, India is a large. बैठकर आवाज. Please. Sir, India is a large country with over 140 crore population. As a result, there are cases of rare and genetic disorders is also very huge. As per the government estimates, there are about 7.2 crores to 9.6 crore Indians suffer from about 6,000 different rare or genetic disease in the country. These include diseases like sickle cell anemia, spinal muscular atrophy, Down syndrome, cystic fibrosis, etc. The field of rare disease is complex and heterogeneous. The landscape of rare disease is constantly changing as there are new rare diseases and conditions being identified and reported regularly in medical literature. There are primarily three challenges here, sir. The challenges related to diagnosis. There is a lack of awareness about the rare disease in general public as well as in the medical fraternity. Since most of these case load is in the tier 2, 3 and 4 cities and towns and the rural areas, they remain undetected and undiagnosed. Sir, in addition to 2 or 3 misdiagnoses are typically before arriving at a final diagnosis which causes delay and further suffering. Sir, the second challenge is related to treatment. Despite progress in recent years, effective or safe treatment is not available for most of these rare diseases. The other critical factor is the prohibitive cost of treatment. For the rare diseases called spinal muscular atrophy, the treatment involves a drug called Zolgensma, which costs a whopping 18 crores. Drugs like Natisinone are used for the treatment of tyrosemia type 1 and cost more than 3 crores per annum. Recently, the government has given permission for manufacturing of 4 out of the 8 types of generic drugs for the treatment of rare genetic diseases such as tyrosemia type, Gaucher's disease, Wilson's disease, etc. The 2 milligram tablet that costs 5 lakh rupees from Sweden will be available for 6,500 rupees in India. The drug Aliglustat that costs more than 3 crores a year shall now cost about 5 lakhs. And so is the case with other drugs. This is a welcome and much needed move. The third challenge is preventive and control of rare diseases. The prevention of genetic disorders can be done at multiple levels. Build the capacity of health professionals and increase awareness in the population at large, preventing the occurrence of disease, that's preventing 2 carriers from reproducing, prenatal screening and prenatal diagnosis, newborn screening, better care, and medical rehabilitation of patients. Although the government is doing its best, I would like to make 3 suggestions. One is data. Gather more and more epidemiological data on how many people are suffering from which rare and genetic disorder, prevalence and burden of disease, patterns and trend analysis. Thank you, Mani Kartikeya ji. Mani Shri Sanjeev Arora ji demand to reconsider the decision of not imposing anti-dumping duty on imported polyester spun yarn. Thanks, Vice Chairman Saab, for giving me permission to speak on a very important issue. It is regarding textile industry, which is one of the largest employer in the country.
textile industry is going through a very bad phase. It is running at around 50% on an average capacity nationwide. And the immediate action is required from Textile Ministry and Finance Ministry. More than 45 million workers are directly employed by industry, not to talk about indirect beneficiaries. We are looking at, rather we are staring at huge unemployment on our way, and also huge amount of NPA in shape of bad loans. To save the industry, we need to make import of cotton and polyester fiber cheaper. Rather, it should be duty-free. And anti-dumping duty should be imposed on duty-free imports of polyester yarn from countries falling under Asian FTA. This request has been made by all the associations many times. I have also personally requested Honorable Finance Minister before also. Export incentives need to be given, which should be unprecedented. Need to help industry and also further help Made in India mission by making raw material cheaper and finished product costlier to get into this country. Thank you, Vice Chairman, sir. Thanks, sir. धन्यवाद माननीय संजीव अरोड़ा जी। माननीय श्री नरहरि अमीन जी, डिमांड टू एग्जेम्प्ट चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्टल्स फ्रॉम जीएसटी। माननीय उपसभापति महोदय, गुजरात में कई सारे सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नॉमिनल फी लेकर हॉस्टल की सुविधा प्रदान करते हैं। गुजरात में पाटीदार समाज, राजपूत समाज, सुथार समाज, लुहार समाज, ब्रह्म समाज, सोनी समाज, प्रजापति समाज, मोदी समाज, जैन समाज जैसे कई समाज के जो चैरिटेबल ट्रस्ट ग्रामीण एरिया से आने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को अर्बन एरिया में नॉमिनल फी लेकर हॉस्टल में रहने की सुविधा प्रदान करते हैं। इन चैरिटेबल ट्रस्टों का हेतु सेवाकीय प्रवृत्ति करना होता है, न प्रॉफिट करना। इसके अलावा ये चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित हॉस्टल में भोजन और लॉन्ड्री की सुविधा भी दी जाती है। ये सभी चैरिटेबल ट्रस्ट इनकम टैक्स की कलम 80G और 12A के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। इन सभी चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनर की तरफ से जो डोनेशन आता है उसी से ही हॉस्टल का निभाव खर्च निकला जाता है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट का हेतु सिर्फ सेवाकीय प्रवृत्ति करना होता है। इन चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित शैक्षणिक संस्थाओं ने जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस को जीएसटी दर से मुक्ति मिली हुई है, परंतु इन चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित हॉस्टलों को जीएसटी काउंसिल द्वारा 12% से दर से जीएसटी लगाने का निर्णय सरकार द्वारा किया गया है। गुजरात में ऐसे 500 से 600 चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित हॉस्टल है जहां पे गरीब और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को नॉमिनल फी लेकर भोजन और लॉन्ड्री आदि सेवा दी जाती है। सरकार का प्रवर्तमान 12% जीएसटी दर इन गरीब और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों पर ही लागू होगा। मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री से ये अनुरोध है कि चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित हॉस्टलों को हाल में प्रवर्तमान 12% जीएसटी दर में से मुक्ति दी जाए। धन्यवाद माननीय श्री नरहरि अमीन जी। माननीय श्री अब्दुल वहाब जी, कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग सुसाइड रेट्स अमॉन्ग्स young women in India. Thank you. I am talking about the suicide in young women cases. According to records, it is more in South India, especially that Kerala and Karnataka and all. We feel, or I feel, that it is because of under-reporting of the suicide in North India. In North India, maybe they are not reporting, fearing that some case will come against dowry or mother-in-law, father-in-law harassment and all. So in South, the data is clear. So try to make the data clear so that government can intervene in this area. Beti Bachao, Beti Padhao
और बेटी सुइसाइड से और खुदकुशी से भी बचाओ, वो थोड़ा स्लोगन चेंज करना है अंडर एबल लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी. This, when you look at suicides, experts points out that central India and better reporting infrastructure. So what you should do is the government machinery have to have more counseling centers, more facilities, infrastructures to educate the young women, especially in our new generation system. Students, youngsters, they cannot take stress. They are like mostly like broiler chicken. Every time they need some sort of antibiotics nowadays. So any stress comes there immediately. And even 4-year-old, 5-year-old, even now 7-year-old got suicide, they made suicide. So this is a factor government of India has to take it seriously, and more counseling centers and more in colleges and all, more psychology batches should be given. Then only we can curb this. Our rate per 100,000 is 6.2, 6.4, but in the international, the global, this one is 5.2. So considering this one, already we have given by 2030, our government has promised that we will reduce this rate to a level of international at least. So I urge the government to take more positive action in this regard. Thank you very much. धन्यवाद माननीय अब्दुल वहाब जी. माननीय श्री हरभजन सिंह जी, नीड टू इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. नहीं बोलना चाहते? धन्यवाद. माननीय श्री विजयपाल सिंह तोमर जी, डिमांड टू कनेक्ट रेल रूट ऑफ नौचंदी एक्सप्रेस रनिंग बिटवीन मेरठ टू लखनऊ एंड पानीपत वाया उधर. धन्यवाद उपसभापति महोदय. मेरठ एक ऐतिहासिक नगरी है. मान्यवर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी. और केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरठ के लिए सबसे पहली एशिया की रीजनल रैपिड ट्रेन देने का काम किया गया. लेकिन अभी भी मान्यवर बहुत लंबे समय से मेरठ से एक नौचंदी एक्सप्रेस चलती है लखनऊ के लिए. हम शाम को बैठते हैं, सुबह 6 बजे लखनऊ पहुंच जाते थे. अब उसको सहारनपुर से शुरू करना जा रहे हैं मेरठ की बजाय. सहारनपुर और लखनऊ के बीच दर्जनों ट्रेन ऑलरेडी चल रही हैं और सहारनपुर से एक लिंक आके जुड़ती थी. यदि सहारनपुर से आएगी तो मेरठ के यात्रियों को उससे भारी नुकसान होगा. मान्यवर, इसी तरह पानीपत से मेरठ को जोड़ने के लिए कई बार सर्वे हुआ है, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ, क्योंकि मेरठ, सरधना, बुढ़ाना, कैराना, पानीपत सीधा कोई रेलवे लाइन नहीं है. तो मैं आपके माध्यम से मान्यवर ये अनुरोध करना चाहूँगा माननीय रेल मंत्री जी से, केंद्र सरकार से, कि मेरठ क्योंकि स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा हब है और राजधानी जाने के लिए केवल एकमात्र शाम को ट्रेन चलती है और कोई ट्रेन नहीं है, लखनऊ नौचंदी एक्सप्रेस. नौचंदी एक्सप्रेस को, नौचंदी का एक ऐतिहासिक महत्व है, वहाँ एक मंदिर है और बड़ा मेला लगता है, इसलिए नौचंदी एक्सप्रेस को उसके नाम पर है. नौचंदी एक्सप्रेस मेले के नाम पर और मंदिर के नाम पर उसको मेरठ से ही चलाया जाए और एक रेलवे लाइन मेरठ, सरधना, बुढ़ाना, कैराना, पानीपत दी जाए. यही मेरा निवेदन. धन्यवाद. धन्यवाद माननीय विजयपाल सिंह जी. माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण, issuance of misappropriation of Panchayat Raj funds in the state of Telangana. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, this is regarding misappropriation of Panchayat Raj funds in the state of Telangana, sir. I would like to bring to the notice of the minister concerned to view the matter very seriously. Sir, based on the recommendation of 15th Finance Commission, the Union government transferred nearly 3,500 crores for the local bodies like Jilla Parishad, Mandal Parishad, and even for Gram Panchayat for the welfare and other developmental activities in the respective Gram Panchayats. Sir, Sarpanchas were entitled to draw the money and spend it for the welfare and other developmental activities in the respective Gram Panchayats. But unfortunately, the officials of Panchayat Raj department in the state, without the knowledge of Sarpanches, misused the digital key of the bank accounts of the Sarpanches and diverted the funds to pay the old dues and advancement payments of power bills, etc., which is against the norms of Panchayat Act, sir. From the last few years, funds allotted by the union government are getting diverted
and misused. I have also noticed that Manrega funds are being diverted, sir, and utilized for other schemes. Sir, earlier the mining cess and rear registration stamp duty was being given to the local bodies, which were useful to take up some at least minimum development work, sir. But in the new Panchayat Act brought in the year 2018, amendments have been made so that these funds go to the state government only. Sir, the local bodies are suffering for shortage of funds and are unable to take up minimum development programs, sir. I request the Union Minister to conduct a comprehensive inquiry into all these deeds and take necessary steps to protect the rights of the local bodies as per 73rd and 74th constitutional amendments, sir. Ensure that the funds should be deposited in the concerned village accounts so that they may take up minimum necessary development activities for the welfare and betterment of villages, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Dr. K. Lakshman ji. माननीय श्री शंभू शरण पटेल जी, demand for expansion of Patna airport and starting air service from Patna to Kathmandu. धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में सभी सेक्टरों में विकास हुआ है और एयरपोर्ट में भी 74 से बढ़कर 148 हो गया है महोदय। लेकिन पटना का जो एयरपोर्ट है, जिसको हम लोग जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं, नाम तो अंतर्राष्ट्रीय है लेकिन एक भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वहां से नहीं जाती है और वहां का जो रनवे है काफी छोटा है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में एक खतरनाक एयरपोर्ट से उसका तुलना किया जाता है। अतः मैं सरकार से इस सदन के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो पटना का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका रनवे का विस्तारीकरण किया जाए और बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए तो वहां से फ्लाइट है, बाबा पशुपतिनाथ के लिए भी पटना और बिहार वासियों को एयरपोर्ट की फ्लाइट की सुविधा मिल जाए ताकि हम लोग पटना वासी, बिहार वासी डायरेक्ट पटना से काठमांडू जाकर बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन कर पाए। यही मांग मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से और माननीय नागर विमान मंत्री जी से करना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय शंभू शरण पटेल जी। माननीय डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, डिमांड टू कंप्लीट इंदौर मनमाड न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय नर्मदे हर। माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में 105 साल पुरानी मांग है इंदौर मनमाड रेल मार्ग की और वो आज तक पूरी नहीं हुई है। मेरे क्षेत्र के आदिवासी भाइयों और बहनों ने निरंतर रेल का सपना देखा है, लेकिन रेल का सपना आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। 105 साल पुरानी इस रेल मार्ग के बनने से हमारे आदिवासी क्षेत्र के 5 से अधिक जिले जुड़ेंगे और 13 से अधिक विधानसभा इससे जुड़ेगी और कई रेलगाड़ियों का सफर 250 से 600 किलोमीटर तक कम होगा और साथ ही निमाड़ मालवा के ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल जिसमें महेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकाल, मांडू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 52 गजा, नागलवाड़ी जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इस रेल मार्ग से जुड़ेंगे और आदिवासी किसान भाइयों और बहनों को भी इससे लाभ होगा। माननीय उपसभापति महोदय, इस रेल मार्ग के पूर्ण होने से आदिवासी क्षेत्र का विकास होगा और मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त होगा और साथ ही सेना के जवानों को भी आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि जनजातीय गौरव कॉरिडोर के तहत बजट में 70,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसी बजट से इस क्षेत्र में रेल मार्ग का निर्माण अगर किया जाता है तो मेरे क्षेत्र के आदिवासी भाइयों और बहनों को और क्षेत्र का विकास भी होगा। बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। माननीय सुमेर सिंह जी। Honorable members, I have to inform that a supplementary list of business has been issued to take up for consideration and passing of the following two bills as passed by Lok Sabha: the Jammu and Kashmir Reorganization Second Amendment Bill 2023, the Government of Union Territories Amendment Bill 2023. Honorable members, these bills will be discussed together and taken up before the two bills listed in today's revised list of business. Thank you. Question now.
Honorable members, question hour. Question number 106, Shri Ramnath Thakur. रन संख्या 106। Honorable Minister. Hi. First supplementary, Shri Ramnath Thakur. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्रालय में जो विगत 3 वर्षों से क ख ग जगह खाली है, रिक्तियां हैं, उसमें भरने का क्या उपाय कर रहे हैं आप? Honorable Minister. महोदय, जैसे कि विस्तृत जानकारी जवाब में दी गई है, मंत्रालय जो संबंधित